just a second. Yes, he's an alumnus of IIT, and he is the founder of the Practical Jyotish, and काफी astrology में भी है. He is a Art of Living International teacher also. So today he is here with us, and we are talking about how astrology affects the relationships. So Sahil bhaiya, welcome, and over to you, Sahil bhaiya. Yes, Abhishek. So let us close up Om 3 times. Om chanting के साथ start करते हैं हम लोग. Take a normal breath in and out. Breathe in for Om. Om. Breathe in. One last time. And very slowly, you may open your eyes. So, welcome everyone. Jai Gurudev. तो पिछली बार की तरह इस बार भी एक गुरुदेव के छोटे से वीडियो से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो उसको फिर बात धीरे कनेक्ट करो तो और मजा. तो आई जस्ट शेयर. भैया आप को होस्ट हो, आप शेयर कर पाएंगे. Is it audible, visible? Yes, Gurudev. I learned that the planet Saturn affects negatively someone's life if it happens to be at a moment in time intertwined to this person's astrological sign. How long does this last, and how does it affect us? How can we know according to astrology that we are going through this obscure time in our life? Are we completely helpless during that time to the point we can't overcome the negative vibes? Thank you for enlightening us. Okay, तो लास्ट सेशन में किसी ने मेरे से 7.5 के बारे में पूछा था कि शनि का कैसा प्रभाव होता है, 7.5 क्या होती है. तो इस वीडियो में गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से बताया है, तो ध्यान से सुनिए. Astrology is a science of understanding. Astrology is a science where it talks about the connection of macrocosm with the microcosm. How far away planet like Saturn, Neptune, Uranus, Pluto, a connection to this planet Earth, to our human existence, and to the entire creation, to grains, to birds, The ancient people found out there is connection between planets and our own body. Saturn is connected with our teeth and our legs. So some part of the body is connected with some planet. Sun is connected with your eyes. And the Saturn is connected with sesame seed. It's connected with crow as a bird, blue sapphire as a stone. So they saw connection in the universe. Everything is connected. Now, planets move today with all very powerful binoculars and telescopes and big Hubble telescope and all. We could find out how big the universe is. But ancient people knew it and they wrote it all.
Even today, they wrote to the minute, to the second of when the eclipse is going to happen, when they have all the calculation in place. It's amazing. It's a science that has not been explored very well in modern days. Yes, Saturn affects. What do they say? If you are undergoing a particular Saturn period, that period is going to affect you, your mind. But does Saturn always affect in a bad way? No. If you have dispassion, Saturn helps you more. If you are too much attached to something, Saturn will try to remove that and push you. Saturn is a very spiritual planet. The Saturn, if you are on the spiritual path, he will elevate your life. If you are caught up in the worldly life, and he will give trouble there. So that you can get out of those and find the bigger wealth inside of you. That is what is all Saturn. Don't think Saturn period is always bad. No. It can do good to you if you are on the spiritual path. If you are not, he will create a problem so that you can get into spiritual path. This is what happens to most people. They lose their job, they lose their relationship, they lose everything, reputation. Then they keep looking where I can go. Then they come to spiritual path. And that is he'll either give you inner wealth or outer wealth. If you are stuck to the outer wealth, he will push you towards the inner wealth. If you have inner wealth, he will give you outer wealth. He'll give you more things out. That is we had to say his Saturn is not he or she. That period brings you that sort of thing in you. And Saturn, it takes 30 years to take one circle around the sun. So, and when he comes 2.5 years in each constellation, each of the, what do you call it? Zodiac sign. In each sign he stays 2.5 years. That's why people feel so desperate. 2.5 years, they had it. They had problem with relationship and then money problem, job problem and all sorts of problems. And it can go from 2.5 to nearly 5 to 7.5 years. So in India it's a common saying, if someone is undergoing a big problem in all friends, they say Sade Sati. Means he is undergoing a 7.5. And if he is going through a little lesser problem, he said Daya, 2.5 years problem he is facing. So you can face that type of situation only twice in your lifetime more. At maximum twice. Yeah. So it comes once in 30 years. So 2 times 7 years. That when it comes second time, it is not that severe. First time, one feels it's severe and feels so bad and mind goes down. Nothing feels right. That's the time when people feel. And what is the use of the Jyotish? If you know this, oh, I am going through this particular period, then you are aware. You wait for the time to pass. Then you turn spiritual, you do more meditation and all the practices. It uplifts you, elevates you, pulls you through that tough period. Yeah. Such a nice video, right? तो इसमें आधी बात तो गुरुदेव ने कितनी जल्दी क्लियर कर दी कि किसी की सैटर्न महादशा या साढ़े साथी चल रही है तो यहाँ तो उसकी जॉब छूट जाती है या फिर उनके रिलेशनशिप्स में कुछ ब्रेक हो जाते हैं रिलेशनशिप या किसी से रिलेशनशिप टूट जाता है। तो आप लोग अगर अपनी लाइफ में ध्यान देखोगे बचपन से अभी तक, यू जस्ट सी
देन यू विल रियलाइज कि 80% जो आपकी लाइफ में चीजें हो रही है ना, वो ऑटोमेटिकली हो रही है, उस पर आपका ज्यादा कंट्रोल है। एंड 20% ऑफ द थिंग यू दे आर इन दैट योर कंट्रोल। लेकिन दैट इज ट्रू कि जो 20% आपके हाथ में है उसको आप अच्छे से करोगे तो जो 80% बाकी की बची हुई है, दे आर अफेक्टेड वेरी पॉजिटिवली। आई थिंक इट जनरली लाइक बहुत एग्जैक्ट फिगर लोग देते नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू क्लियरली 80% इज लाइक चीजें ऑलरेडी प्लान्ड है आपकी लाइफ में, जो कि आपको पिछले कर्मों के हिसाब से थिंग्स आर गिवन टू यू, एंड 20% आर इन योर हैंड। तो आप लेकिन 20% को अच्छे से यूज करोगे। जैसे गुरुदेव ने बताया कि ज्योतिष कैसे हेल्प करता है, किसी को पता है उसकी शनि की महादशा चल रही है, 7.5 की चल रही है, तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा तो उसे फायदा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन वो सेवा करेगा, वो एडवांस कोर्स करेगा, तो उसको अंदरूनी खजाना, बोला ना कि शनि इज द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेनेट, तो आपके अंदर का जो खजाना है ना, उसको ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, अभी तो ये आपकी पर्सनल लाइफ का हो गया। नाउ कम टू द रिलेशनशिप पार्ट। तो 80% आपकी लाइफ हाथ में नहीं है, आपके रिलेशनशिप में वो 80% 90% हो जाता है। इट्स अ बिग फैक्ट कि 90% इवन मोर देन दैट रिलेशनशिप आर टोटली रूल्ड बाय प्लैनेट। हमें लगता है कि हमने कुछ किया और सामने वाला नाराज हो गया और लड़ाई हो गई, नहीं, इट्स मोर अबाउट प्लैनेट। मोर देन 90% वेटेज प्लैनेट का होता है रिलेशनशिप में। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच कुंडली, कंपैटिबिलिटी कुंडली मिलान। एंड आई विल स्टार्ट विद शेयरिंग द स्लाइड, जो कि मैंने पिछली बार भी शेयर करी थी, नक्षत्रा वाली स्लाइड। इट इज अ वेरी पावरफुल स्लाइड। वो आप स्लाइड समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड आउट कि आपके लिए कौन सा समय, कौन सा रिलेशनशिप फायदेमंद है और कौन से रिलेशनशिप से ये नुकसान होने की आशंका है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप में से किसी का अश्विनी, मघा या मूल नक्षत्र है, वो चैट बॉक्स में अपना नाम टाइप करें, तो इट विल बी इजियर। मैं किसी इंसान के रेफरेंस लेके बताऊंगा। एनीबडी बोर्न इन अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, जस्ट टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स। और जिनको अपना नक्षत्र पता है, आप अपना नक्षत्र टाइप करो चैट बॉक्स में अगेन। तो आई विल जस्ट पिक आउट वन नक्षत्र जो इसके अभी जिसमें फिट बैठ जाए आराम से, एंड आई विल एक्सप्लेन। So yeah, I'm waiting for some responses. Okay, Vijay ji, Rohini Nakshatra. Okay, Swati Nakshatra. Okay, Ashlesha Nakshatra. Anishta, Swati, Ashlesha, Uttarashada. Okay, Vishakha. Okay, Jyeshta Nakshatra. Okay, few more, 30 seconds more. I am waiting. Chitra Nakshatra. Okay. तो विजय जी का नक्षत्र लेते हैं, रोहिणी नक्षत्र। ओके, तो रोहिणी नक्षत्र आपको कहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे? आई एम जस्ट वेटिंग किसी का अश्विनी, मघा या मूल नक्षत्र आए। नक्षत्र, ओके, ठीक है। तो पहले मैं बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। बहुत सारे लोग पिछले सेशन में नहीं थे। फिर उसके बाद पिछली बार मैंने इसको मुहूर्त के हिसाब से बताया था। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू द रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड नवतारा चक्र। तो इसको दोनों ही फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही पावरफुली। ओके, तो सपोज आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ। ओके, तो सपोज किसी का चैट बॉक्स में आया कि अश्विनी नक्षत्र लगने से श्रवण, विशाखा, अनिष्टा। ओके,
अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र का हुआ है, अश्विनी, मघा या मूल नक्षत्र में से किसी में हुआ है, तो आपको इस रो में उसको पुट करोगे, जन्म नक्षत्र की रो में। एंड दीज नक्षत्रास लाइक 1 2 3 4 दीज आर इन सीरियल ऑर्डर। जब आसमान में देखोगे आप, तो यहाँ से 1 से काउंटिंग चालू करोगे 9 तक, फिर 10 से 18 तक, फिर 19 से 27 तक। तो ये आसमान में सीरियल नंबर पे ऐसे करके, ओके। तो इसलिए इनको ऑर्डर में लिखने का एक सिग्निफिकेंस है, इनका ये सीरियल नंबर है। तो किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो उनके लिए भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के लोग संपत्ति देंगे। तो रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अबाउट योर स्पाउस, इट्स अबाउट ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। तो जैसे आपको बिजनेस पार्टनर बनाना है, तो कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ वाले लोगों को, इंसान को बिजनेस पार्टनर या अपनी बिजनेस में रखना चाहिए, उससे उनको संपत्ति मिलेगी। ओके, नाउ कृतिका उत्तर फाल्गुनी एंड उत्तर आषाढ़ नक्षत्र। तो अश्विनी, माघा और मूल नक्षत्र वाले लोगों के लिए कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र विपत्ति लाता है। तो अगर आपका कोई करीबी, स्पेशली आपको अगर शादी करनी है, तो अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र वाले की अगर इनमें से किसी से शादी होती है, तो आपकी लाइफ में काफी विपत्ति लेके आएंगे वो लोग। देन कम क्षेम नक्षत्र। क्षेम मीन्स प्रोटेक्शन। तो रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र आपकी जन्म नक्षत्र को, इन 3 जन्म नक्षत्र को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो यू कैन जस्ट एक वर्ड लिख सकते हो। क्षेम मीन्स प्रोटेक्शन। देन कम्स प्रत्यारी। प्रत्यारी मीन्स होता है बराबर का कंपटीशन, इक्वल कंपटीशन। तो इन 3 नक्षत्रों के साथ इक्वल का कंपटीशन रहेगा। तो इनफैक्ट जैसे रिलेशनशिप के हिसाब से भी, अगर आपका आपके पार्टनर के साथ इक्वल का कंपटीशन है, जैसे आपका पार्टनर इन प्रत्यारी नक्षत्र में आ रहा है, तो देयर विल बी ऑलवेज सम काइंड ऑफ कंपटीशन इन यू बोथ, और इस वजह से इतना आप खुश नहीं रह पाएंगे, बिकॉज बोथ ऑफ यू विल बी ऑलवेज कंपीटिंग। और आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये काफी ज्यादा चल रहा है। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो आधी जिंदगी को एक दूसरे से कम्पीट करने में ही निकाल देते हैं कि मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, या फिर मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस चीज में अच्छा हूँ या मैं उस चीज में अच्छा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यारी नक्षत्र विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। और ऐसे आपके कोई दोस्त भी होंगे या कलीग भी होंगे ना, तो देयर विल बी ऑलवेज कॉम्पीटिंग विद यू। सो इट्स नॉट ए गुड आइडिया। हमेशा अपने आप से कंपटीशन रखिए, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन हिमसेल्फ। ओके, देन कम साधना नक्षत्र। साधना नक्षत्र इज वेरी गुड टू गो डीप इनटू मेडिटेशन। तो गुरुदेव का जैसे आर्द्रा नक्षत्र है, तो अश्विनी, मघा और मूल वाले तो गुरुदेव को देख के ही मेडिटेशन में चले जाते होंगे, क्योंकि उसका आर्द्रा नक्षत्र है, स्वाति, शताब्दी है। तो ये 3 नक्षत्र के लिए साधना करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इट्स फॉर एवरीवन, लाइक दोज हु आर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। आप एडवांस कोर्स प्लान करते हैं, तो आई टेल यू, आप अपना साधना नक्षत्र निकालना और देखना पंचांग में कि ये नक्षत्र पड़ रहा है क्या, और एडवांस कोर्स उस डेट्स में प्लान करना, तो बहुत ही अच्छा होगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस टीचर का एडवांस कोर्स करो, इस टीचर का एडवांस कोर्स करो, ठीक है। किसी टीचर को, जैसे कोई टीचर शूट करता है, जैसे आई एम फ्रॉम IIT, तो मेरे को बाबा दिनेश से बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो। किसी लोगों को ऋषि नित्य प्रज्ञा जी बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को ऋषि विद्यादेव जी अच्छे लगते हैं। तो इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नक्षत्र। तो जो एडवांस कोर्स टीचर आपके अगर साधना नक्षत्र से मैच कर रहा है, आपके करस्पॉन्डिंग जो साधना नक्षत्र है, अगर एडवांस कोर्स टीचर का वो नक्षत्र है, तो उनकी आवाज में मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही गहरे में जाएगा। और कोई अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, तो गुरुदेव की वो आवाज सुन के ही मेडिटेशन में डीप चला जाएगा, क्योंकि वो आज। ओके, तो साधना हो गया। देन कम नैधाना। तो नैधाना इज द नक्षत्र व्हिच ब्रिंग्स यू डेथ। ओके, तो जैसे आपको ड्राइवर रखना है,
या किसी के साथ आप बाइक पे ड्राइव पे जा रहे हो, तो वो आपके करस्पॉन्डिंगली निधान नक्षत्र का है ना अगर, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आपका एक्सीडेंट कराए। या फिर आप, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, दिस इज लाइक बहुत ज्यादा रिसर्च की बात हुई है, तो इतने सारे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं ना, आप कभी भी एक्सीडेंट जिसका हुआ है, जिस इंसान की मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में, उसको उठाना और जिस इंसान ने एक्सीडेंट किया उसको उठाना, उन दोनों की आप नक्षत्र मैच करना, तो 99% केसेस में आप पाओगे कि वो निधाना नक्षत्र होता है। दिस इज किसी आपके फैमिली में, खैर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, लेकिन आपके साथ भी कभी कोई ड्राइव कर रहा हो और एक्सीडेंट हुआ हो, तो जस्ट चेक आउट कि वो निधान नक्षत्र में है क्या। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दीज आर द रिलेशनशिप। आपको जैसे कोई भी किसी के साथ भी जाना है, मेक श्योर ही इज नॉट इन योर निधान नक्षत्र, अदरवाइज देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। देन कम मित्र नक्षत्र। तो मित्र नक्षत्र इज एज क्लियर फ्रॉम द नेम, they are very very friendly people. This nakshatra will be very friendly with you. And Param Mitra nakshatra, Ashlesha, they are even more friendly. तो अभी आते विजय जी के नक्षत्र पे, रोहिणी नक्षत्र में, जो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का होगा। तो विजय जी आप बता सकते हैं कि आपके लिए परम मित्र नक्षत्र कौन से होंगे? सुनील जी, मैं इसको टॉप पे रखता हूँ, रोहिणी को जन्म में रखता हूँ। तो वन, हाँ, तो मृग सारा संपत्ति को लेके आएगा, करेक्ट? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट। आद्रा विपत्ति लाएगा। यस, तो आपके लिए गुरुदेव थोड़ी विपत्ति भी ला सकते हैं, तो भी केयरफुल, लेकिन इट विल बी फॉर योर गुड ओनली, डेफिनेटली। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। फिर पुनर्वासु क्षेमा लेके आएगा, प्रोटेक्शन, Yes, protection. पुनर्वासु, करेक्ट? Yes. पुष्य प्रत्यारी लेके आएगा, पुष्य नक्षत्र। Yes. अश्लेषा साधना लेके आएगा। Yes. अश्वनी निधाना लेके आएगा। Yes. बहरानी मित्र लेके आएगा, एम ए करेक्ट? और Yes. कृतिका परम मित्र बनेगा। Okay, तो आपकी वाइफ का क्या नक्षत्र है? We'll just see. मैंने सच्ची में चेक नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया। मैंने, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम Okay. एक बार में, आई थिंक सो पुनर्वसु या ये वाली लाइन में से था, जितना एक बार मुझे याद है बोल रहे थे, तो ये वाला था। उनकी राशि कौन सी है मैं बता देता हूँ। उनकी राशि स्कॉर्पियो, इंग्लिश में स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, तो उनका नक्षत्र विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठ में से होगा। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो नक्षत्र होते हैं ना वो राशि के अंदर होते हैं। मे बी अगली बार कभी सेशन होगा तो हैव दैट वेरी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग राशि एंड नक्षत्र। तो उसमें आपको पूरा विजुअलाइज हो जाएगा कि राशि क्या होती है, 12 राशि होती है और 27 नक्षत्र होते हैं, वो राशि के अंदर ही आते हैं। तो इसका स्काई डिवीजन आप सर्कुलर मानो तो उसको 30 डिग्री के 12 पार्ट में डिवाइड कर दो, 360 डिग्री, तो दैट बिकम्स 12 राशि, और उसको 27 भाग में बांट दो तो वो नक्षत्र बन जाते हैं। तो 27 नक्षत्र। ओके, अभिषेक जी आपका क्या नक्षत्र था? एक मेरा था ये धनिष्ठ नक्षत्र। ओके, तो धनिष्ठ नक्षत्र। हेलो। लेट्स सी गुरुदेव आपकी लाइफ में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट धनिष्ठ कहाँ पे है? यहाँ पे। तो आप बताइए, आद्र नक्षत्र आपकी लाइफ में संपत्ति ला रहा है, तो धनिष्ठ नक्षत्र, आधा नक्षत्र संपत्ति ला रहा है, तो आप ऐसे ही लोगों को बुलाते रहिए सत्वा टॉक्स में और आपके पास संपत्ति आती रहेगी। ज्ञान की संपत्ति जरूर आ रही है। यस, तो आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट निधाना विपत्ति। निधाना इज एक्चुअली एक्सीडेंट, तो आपके लिए पुनर्वसु, अच्छा आपके लिए विपत्ति हो गया ये, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व। तो विजय जी मित्र हो गए। विजय जी का रोहिणी था ना? कौन सा है, कौन सा था? रोहिणी। ओके, रोहिणी। और आपका है सर? आपका है धनिष्ठ। हेलो, धनिष्ठ। अभिषेक जी आपका धनिष्ठ था ना? नहीं, मेरा रोहिणी है।
तो आप परम मित्र हो गए, मित्र भी नहीं परम मित्र हो गए आपके बिजय जी। करेक्ट करेक्ट। एक ऊपर है ना, तो सबसे नीचे हाँ, आएगा जब आप Yes. पूछ सकती हूँ मैं आपको पहले पूछना। हेलो सर। तो सही है, आप एकदम हाँ हाँ या कोई कुछ कह रहा है, अच्छा, आप चैट बॉक्स में लिखिए कोई कुछ बोलना चाहे। हाँ सर, मैं सुधीर किसी को कुछ चक्रवर्ती डाउट? बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अपने बारे में थोड़ा जानना हाँ हाँ चाहता हूँ बोलिए। सर। मेरा नाम सुधीर चक्रवर्ती है। एक्वेरियस कुंभ में मैं आता हूँ। नक्षत्र पूरा नहीं पता है मुझे सर, राशि खाली पता है। ओके, तो मैं आपको एक नंबर कुंभ दे का। दे रहा हूँ, क्योंकि ना मैं पर्सनली किसी के बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, फिर टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, तो आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है सर, नंबर दे दीजिए चैट में हाँ, सर। ये चैट में मैंने नंबर डाल दिया, तो इसमें मैसेज ड्रॉप कर देना। इनफैक्ट मैंने कल का दिन भी इसलिए फ्री रखा है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत टाइट ओके शेड्यूल था, सर। तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे मेरे पास, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाया मैं। बट टुमारो आई केप्ट फ्री स्पेशली फॉर दिस फॉलो अप के लिए, क्योंकि जैसा कि गुरुदेव ने बताया ना कि ठीक है, यू कैन लर्न द मेजर पार्ट, लेकिन पर्सनली स्पेसिफिकली आपको अपनी लाइफ के ना, आपकी लाइफ में आगे खड्डा आने वाला है कि पहाड़ आने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको हो तो आपकी लाइफ और अच्छी हो जाती है, कि आपको पता लग जाए कि अच्छा ये रोड स्पीड ब्रेकर आ रहा है, राहु की महादशा है, अंतर्दशा आ रही है, तो फिर यू कैन चेंज योर एनर्जी। लाइक कोरोना जैसे अभी हो गया, बहुत सारे लोग थोड़ा सा अपना अंदर जा रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हर इंसान को एटलीस्ट अपना नक्षत्र और अपना राशि और उनकी महादशा, उनका कैसा टाइम चल रहा है अभी, बेसिकली किस टाइप की एनर्जी डोमिनेंट है। जैसे किसी की वीनस महादशा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लैनेट्स, क्या प्लैनेट्स का भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ किसी वाली साइड में था, लगी थी क्या एक बार। I have Ashlesha, then Adra. Okay. Okay, हाँ, my राशि is Scorpio, my नक्षत्र is अनुराधा। हाँ, फाइन, अनुराधा स्कॉर्पियो के अंदर ही आता है। संदीप जी बोल रहे हैं I have अश्लेषा नक्षत्र, then आद्रा brings निधाना। तो अश्लेषा नक्षत्र है तो आद्रा brings निधाना। निधाना मीन्स होता है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ओके, तो आद्रा नक्षत्र वालों को आप थोड़ा सा मतलब उनके साथ ट्रैवल नहीं करिए, मतलब उनको आपके ड्राइविंग, उनसे आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है, डेथ होने के चांसेस है, तो या उनसे मतलब थोड़ा सा दूरी बनाएंगे तो वेरी गुड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू वन मोर स्लाइड, या फिर अभी थोड़ा सा नॉर्मल ही आई विल जस्ट टेल लिटिल मोर अबाउट कनेक्ट बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड रिलेशनशिप। तो कितने लोगों ने कुंडली मिलान के बारे में, सब लोगों ने सुना होगा कि 36 गुण मिल जाए तो इट्स अ वेरी गुड मैच। ओके, तो कोई बता सकता है कि किसी के 36 में से 30 भी गुण मिल रहे हैं, मतलब हाउ मच, कितना वेटेज होता है 36 गुणों का? एनी आइडिया? 36 गुण में से 30 मिल रहे हैं तो वेरी गुड मैच। नहीं, 36 गुण में से अगर 20 गुण मिलते हैं तो ठीक रहता है। ओके ओके ओके। और मैंने तो किसी किसी के कुंडली में ये भी देखा है कि जिनके 36 में से 12-13 गुण मिलते हैं वो भी उनका भी चल रहा है। वेरी नाइस। तो इसी पे मैं बताता हूँ एक बार, सहगल जी के लिए तालियां, बहुत अच्छा। मौलिक दवे बता रहे 50%, लेट मी सी चैट बॉक्स में क्या आ रहा है। ओके, तो जो ये गुण मिलान होता है ना, 36 गुण का मिलान, तो इट टेल्स अबाउट, इट्स लाइक अ थंब रूल। ओके, तो इससे ना आपको 30 से 40%, इनफैक्ट बड़े एस्ट्रोलॉजर से वो तो बोलते 20% ही स्टोरी पता लगती है। आई हैव सीन 36 में से 30 से ज्यादा गुण मिल रहे हैं लोगों के, उनका भी डाइवोर्स हुआ है, और 36 में से एक गुण मिल रहा है, उनकी भी बहुत अच्छी मैरिज चल रही है। तो ये केवल केवल गुण मिलान वाला, हाँ, तो ये जो केवल गुण मिलान वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, 36 गुण में से अच्छे गुण मिल जाए तो शादी कर दो, तो इट इज नॉट फुल ट्रू। फिर उसके लिए देखी जाती है ग्रह मैत्री। ओके, आई एम रिपीटिंग ग्रह मैत्री। तो ग्रह मैत्री क्या होती है कि आपको प्लैनेट, उसकी जो प्लैनेट है वो आपकी कुंडली में कैसा इफेक्ट ला रहे हैं।
दैट यू हैव टू सी। सपोज आपका राहु, आपका सन बैठा है लियो राशि में, और आपका जो पार्टनर है उसका राहु बैठा है लियो राशि में, तो जब आप दोनों की शादी होगी तो राहु आपका सन के साथ सुपर इम्पोज हो जाएगा, और राहु जब सूर्य के साथ आएगा तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है, राइट। तो इट्स नॉट अ गुड मैच। तो इन लोगों के 30 से ऊपर भी गुण मिल रहे होंगे, तब भी देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गुण मिलानी इज ओके, बट ग्रह मैत्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग आउट द ग्रह मैत्री। तो दैट इज फाउंड आउट, तो उसको मैं बता भी देता हूँ थोड़ा कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे। ग्रह मैत्री के 4 नंबर होते हैं ना सर? नहीं, तो इसे ना सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल से फाउंड होते हैं। तो ऐसा तो बहुत डेप्थ में होता है, इट्स लाइक जो कुंडली मिलान होता है उस पे ही मतलब 3 दिन का वर्कशॉप हो सकता है प्रॉपर, लेकिन ग्रह मैत्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट। उसको सुपर इम्पोज करके फाइंड करते हैं, आपकी कुंडली और आपके पार्टनर की कुंडली को सुपर इम्पोज करते हैं एक के ऊपर एक, एंड दे फाइंड आउट कि कौन सा ग्रह किस राशि में और किसके साथ बैठता है, और अपोजिट ग्रह एक साथ तो नहीं बैठ रहे हैं, राइट, ग्रह, यस। तो उसको बोलते हैं ग्रह मैत्री। देन कम्स मंगल दोषा। तो मंगल दोषा के बारे में किसको क्या पता है, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो, देन आई विल स्पीक मोर अबाउट मंगल दोषा। विजय जी आप हैं क्या? मंगली दोष पूछ रहे हैं आप? हाँ, मंगली दोष के बारे में क्या पता, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, यस। causes harm to the partner, okay। कुंडली के अंदर पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, इस राशि के अंदर अगर मंगल होता है तो मंगली दोष कहलाता है। यस यस। तो ऐसा हो गया तो मंगल दोष हो जाता है क्या? तो ठीक है, तो सुना तो सही है। आंशिक मांगे, ओके। तो मंगल दोष को थोड़ा सा मैं और डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ। 80% केसेस में, जस्ट रिमेम्बर माय दिस काउंट, 80 से इवन 90% केसेस में मंगल दोष कैंसिल हो रहा होता है। आप इवन गूगल पे भी सर्च करोगे ना, कैंसिलेशन ऑफ मंगल दोष, तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे मंगल दोष कैंसिल हो रहा होता है, और ज्यादातर लोगों की कुंडली में मंगल दोष कैंसिल हो रहा होता है। जैसे कि सहगल जी ने बोला कि 1st, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में मंगल होने से मंगल दोष हो जाता है, दैट इज ट्रू। लेकिन उसकी कैंसिलेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, किसी ने आईआईटी की प्रिपरेशन करी हो तो उसमें एक्सेप्शंस आते हैं, राइट। वैसे ही मंगल दोष में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो उसको बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करना, उसका कैंसिलेशन पता करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर फॉरगेट दिस थिंग। लेकिन हाँ, ये है कि एक पार्टनर में मंगल दोष है और दूसरे पार्टनर में मंगल दोष नहीं है, तो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट फॉर श्योर, क्योंकि उसका एनर्जी, इट्स लाइक द एनर्जी पैटर्न। तो मैं फिर से वो स्क्रीन शेयर करता हूँ ग्रहों की पर्सनैलिटी वाली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर ये स्लाइड समझ जाएंगे ना, तो आधा ज्योतिष आप, इट्स लाइक कॉन्सेप्ट की तरह होता है। तो आप अपने आप से ही समझ पाओगे कि अच्छा इसका ये सिग्निफिकेंस है, इसका ये सिग्निफिकेंस है। यस, तो आप देख रहे हो मंगल की पर्सनैलिटी क्या है, 2 तलवारें क्रॉस हो गई, तलवार और एक एक्स। तो मंगल की पर्सनैलिटी है द कमांडर, द वॉरियर। ओके, तो मंगल एनर्जी क्या लाती है, एग्रेशन लाती है, ओके, और लड़ाई कराने की टेंडेंसी लाती है। तो जब पार्टनर्स में लड़ाई होती है तो इज इट गुड, इट्स नॉट गुड। So that's why this Mangal dosha is checked very carefully in Kundali Milan. Okay, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आंशिक मांगलिक। But I have heard the effect of rains of after the age of 30 years of age. बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा विशाल छाबड़ा जी ने। तो हर ग्रह का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है,
ऐसा बोला जाता है उस उम्र के बाद ग्रह वो मैच्योर हो जाता है। तो मंगल ग्रह के लिए जो मैच्योरिटी एज होती है वो होती है 28 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के बाद मंगल का इफेक्ट काफी कम हो जाता है, लेकिन आई कैन नॉट से कि वो टोटली खत्म हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन चार्ट कि उसमें कितना स्ट्रॉन्ग मंगल हो, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन काफी हद तक वो कम हो जाता है। ओके, बिजनेस के लिए अगर तीनों की एक ही राशि है तो या इट्स गुड, अच्छा है, वेरी गुड। मुझे सर अगर मंगल, एक हाँ मुझे एक बार अमित जी का क्वेश्चन आंसर कर दूं। मेरा मंगल नीच का है तो क्या करना चाहिए? तो उसकी अलग अलग रेमेडी होती है। मेरे को देखना पड़ेगा कि आपका मंगल कौन से भाव में बैठा है, और नीच राजभंग योग नाम का एक होता है। कितने लोगों ने सुना है नीच राजभंग योग? तो नीच राजभंग योग में क्या होता है कि वो नीच का ग्रह होने के बावजूद काफी अच्छे रिजल्ट देता है। उसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग, इट्स ऑल्सो अ राजयोग। तो किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भी कभी कभार अच्छा रिजल्ट दे सकता है। स्पेशली मंगल नीच का और आपको मंगल दोष है, तो मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में वो कैंसिल हो जाता है। ओके, और कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? डज रीडिंग हनुमान चालीसा रिड्यूस इफेक्ट ऑफ मंगल? इट इज अगेन डिपेंडेंट कि आपका मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन हाँ हनुमान चालीसा पढ़ना इज वेरी वेरी गुड। तो आप इन जनरल भी पढ़ो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। हनुमान चालीसा इज लाइक द मोस्ट पावरफुल रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी। तो मंगलवार को तो जरूर पढ़े सभी लोग, जिनको मंगल दोष हो ना हो कुछ भी हो। मेष का मंगल 12वें भाव में, मेष का मंगल, तो मेष में मंगल बहुत ही स्ट्रांग होता है। वेरी नाइस। तो राशि के बारे में चर्चा करिए, तो एक पिछली स्लाइड दिखा देता हूँ मैं। और सर तो 12th हाउस में है अगर तो 12th हाउस में मंगल दोष काफी कम होता है। इट्स वेरी वेरी लीस्ट। जितने भी हाउसेस होते हैं उसमें 12th हाउस का मंगल सबसे कम माना जाता है। ओके, तो ये और हमारी 12 राशियां। मेष में तो हाँ उच्च का ही हो गया। हाँ, मेष में काफी स्ट्रांग हो गया। मंगल उच्च का होता है कैप्रिकॉर्न में, हाँ लेकिन मेष में इट इज वेरी स्ट्रांग। तो इट इज लाइक इट इज या इट्स गुड। इसका असर काफी कम होगा मंगल दोष का। तो इट्स ओके, इट्स गुड, योर मंगल इज वेरी स्ट्रांग। लेकिन 12वें भाव में मंगल है अगर मेष राशि में, तो 12वां भाव होता है वेरी नाइस। तो हर भाव का ना एक वो होता है पर्सनैलिटी। तो 12वां भाव होता है आपका मोक्ष का भी और एक्सपेंसिव का भी। तो आपकी मंगल से रिलेटेड चीजों में खर्चा काफी ज्यादा हो सकता है। तो ठीक है, इट्स लाइक इट वोंट बी दैट इजी अभी अंडरस्टैंड करना। तो किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो ये इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि हाँ, तो इसमें ये 12 भाव जो होते हैं ना आपकी कुंडली में, कौन से भाव से आपकी जिंदगी का कौन सा एस्पेक्ट देखा जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, so you just take a screenshot. I will connect to a charger. ओके, तो आपको जैसा दिख रहा है ना, 7th हाउस होता है आपका रिलेशनशिप्स का, मैरिज का, रिलेशनशिप्स का। आप बता रहे थे मैं क्या बोलूं। हाँ, स्क्रीन तो बता जितने भी आपके रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो आपकी कुंडली में 7th हाउस से देखे जाते हैं। तो आप अपनी कुंडली खोल के खुद ही देख सकते हैं कि 7th हाउस में कौन सा प्लेनेट प्लेस है, कौन सी राशि प्लेस है। उसके हिसाब से आपका प्रेडिक्ट किया जाता है कि आपका रिलेशन। ओके, सो दैट वाज अबाउट रिलेशनशिप। किसी का क्वेश्चन है क्या? आई थिंक एक क्वेश्चन आल्सो। ओके, मीन लग्न में 6th हाउस का मंगल कैसा होता है? 6th हाउस का मंगल इज आल्सो नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव
इनको नीच स्थान बोला जाता है। तो इसमें अगर आपके ग्रह कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है तो उसका रिजल्ट इतना पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये बट इट डिपेंड्स कौन सी राशि और कैसा है। 6th हाउस में मीन राशि में मंगल है तो मीन तो लग्न, ये मीन आगे लग्न मीन मतलब लग्न सिंह राशि में आया, सिंह राशि में हुआ। सिंह राशि में मंगल है। हाँ, 6th हाउस सिंह राशि में मंगल तो इन जनरल अच्छा होता है, लेकिन 6th हाउस में ना थोड़ा वो कंपटीशन और डिसीजेस और थोड़े से एनिमीज भी लाता है, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, अदरवाइज ऐसा कुछ इट्स ओके, इट्स गुड। 6th हाउस में मीन राशि में मंगल, तो या आई हैव अगेन टोल्ड इट डिपेंड्स ऑन अदर प्लैनेट आल्सो। हाउ आर अदर टू जन्म नक्षत्र अफेक्ट यू? लाइक आई हैव पूर्ण आषाढ़, हाउ डज इज दिस नवांशा चार्ट? नहीं, नवांशा चार्ट एकदम ही अलग होता है। अभी आप नवांशा में मत जाओ, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, एक्चुअली वो कट गया। मैं पूछ रहा था कि जैसे मेरा पूर्वाषाढ़ा है तो मेरे साथ भरणी और फाल्गुनी है, पी फाल्गुनी लिखा हुआ है, हाउ डज दे अफेक्ट मी? बाकी तो जैसे आपने बता दिए सारे, लाइक दे विल बी फ्रेंड ओनली टू यू, क्योंकि आप वो आपके सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, क्योंकि वो जन्म नक्षत्र वाली लाइन 2 में ही आ रहे हैं ना, राइट? तो आपके जन्म नक्षत्र वाले ही होंगे, तो उनकी एनर्जी आपसे बहुत ही ज्यादा मैच करेगी, क्योंकि जो उनके एनिमीज हैं वो आपके भी फ्रेंड। ओके, तो अभिषेक जी आप और लोगों को म्यूट कर सकते हैं। आई थिंक इट विल बी बेटर चैट बॉक्स में डाल दे कोई। यस साहिल भैया, घड़ी घड़ी થઈ જાય છે આ एक सेकंड। हाँ साहिल भैया, यस यस फाइन, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। પાછું અનમ્યુટ થઈ ગયું। आई हैव डन अनम्यूट। तो वी हैव अवर, हमारे एक वॉलंटियर भी ज्वाइन कर रखे हैं जिसका बर्थडे है, तो मे बी आई थॉट वी कैन विश 1 मिनट के लिए। अभिषेक जी, कैन वी विश बर्थडे टू? यस यस, या तो नेहा, अमेजिंग, हैप्पी बर्थडे। यस यस यस, आई विल जस्ट स्पॉटलाइट। तो हैप्पी बर्थडे। सागर में एक लहर उठी है। Thank you so much. खुशियाँ नेहा, शी इज अ ग्रेट वॉलंटियर, रियली ग्रेट जॉब। Thank you, Sahil. सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मा ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मा ज्ञान की, तुझको ये अनंत में जाकर मिल जाना, तुझको ये अनंत में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर फूल ही संसार की, ये सुंदर फूल ही संसार की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नेहा जी। Thank you so much. Jai Gurudev. Happy birthday, Neha. Thank you. हैप्पी बर्थडे Thank you, नेहा। Sahil. Thank you, all Happy of you. Happy birthday. Thank you. God bless. Happy Have an birthday, amazing Neha. life ahead. हैप्पी बर्थडे नेहा जी। Thank you so much. हैप्पी बर्थडे नेहा जी, गॉड ब्लेस यू। Thank you. जैसे आपका बर्थडे, हमारे जितने भी सेशंस हुए ये एक बड़ा यूनिक रहा। आज आपका बर्थडे और हमने इस तरीके से आपको विश किया। वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर दैट, और इतने बढ़िया टाइम। इनफैक्ट वी शुड कंटिन्यू दिस ट्रेंड। आजकल गुरुदेव से लोग मिल नहीं पा रहे, जनरली गुरुदेव से मिलते हैं लोग बर्थडे पे, लेकिन एटलीस्ट इस गैदरिंग में वी कैन सेलिब्रेट पीपल्स बर्थडे। तो मे बी यू कैन पूछ सकते हो आप नेक्स्ट टाइम में किसका बर्थडे है। हाँ, ये बात आपने अच्छी बताई। वी कैन डेफिनेटली कीप इन माइंड, क्योंकि ये यादगार भी बन जाएगा उसके लिए भी और हम सबके लिए भी, नो डाउट अबाउट इट।
ये वीडियो YouTube पे भी जा रहा है, तो आपको 20-25 साल बाद अपने बच्चों को दिखाना होगा, तो यू कैन रिफर टू दिस वीडियो. So we are creating a history in a way. So great work by you. Okay, तो विजय जी क्वेश्चन, या नेहा ग्रेट. तो क्वेश्चंस आए होंगे कुछ, तो लेट्स क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ही काफी पॉइंट कनेक्ट होते हैं. एक मैं पढ़ के हाँ मम्मी, हाँ रुका 5 मिनट बस. Yes, विजय जी, you can अपना एक क्वेश्चन आया है 11वें हाउस में मंगल विद सन, जुपिटर केतु बुध, इसका क्या मतलब है और नवमासा चार्ट क्या होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस. किसने पूछा क्वेश्चन, नाम है क्या? नवमासा चार्ट पूछा है प्रशांत महाजन जी ने. ओके ओके, तो पहले 11वें हाउस का क्वेश्चन का आंसर दे दूं मैं. जो मैंने कुंडली शेयर करी थी ना, पिछला स्क्रीन पे से शेयर करता हूँ स्क्रीन. तो ये जो आपको 11th हाउस दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ गेन, इनकम एंड सेंस, राइट. तो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह इस कुंडली इस भाव में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है. तो जिसकी कुंडली में जितने ज्यादा प्लैनेट 11th हाउस में है उतना अच्छा है. उसी से मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि जब रावण का बेटा इंद्रजीत पैदा हो रहा था ना, तो रावण ने सारे ग्रहों को ऐसी प्लानिंग करी थी कि सारे ग्रह 11th हाउस में आ जाए, जिससे कि इंद्रजीत कभी मरे ना. उसका नाम इंद्रजीत था. तो सारे ग्रह आ भी गए थे 11th हाउस में, लेकिन क्या हुआ, शनि देव जो थे, शनि देव इज लाइक द जज, ही इज वेरी एथिकल. तो शनि देव ने बोला कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है. तो शनि देव क्या हुए, 11th हाउस से एक कदम बाहर रख लिए, 12th हाउस में आ गए. जैसा कि आप मैं कर्सर रखता हूँ, वो एक कदम 12th हाउस में आ गए. तो 12th हाउस मोक्ष का भी होता है एक तरीके से. तो 12th हाउस में उन्होंने कदम रख दिया, तो इस वजह से इंद्रजीत कमजोर रह गया और उसकी मृत्यु हुई. और जब रावण शनि देव ने 12th हाउस में कदम रखा, तो रावण को काफी गुस्सा आ गई और रावण ने शनिदेव के पैरों में कुछ मार दिया, डंडा मार दिया, जिससे शनिदेव का पैर लंगड़ा हो गया. तभी से शनिदेव का नाम पड़ गया शनिश्चराय. नाम शनिश्चराय, शनिश्चराय मतलब स्लो मूवी. तो जो शनिदेव है, शनि ग्रह है ना, तो सबसे धीरे मूव करने वाला ग्रह है पूरे नवग्रह में. और इसीलिए जैसा कि गुरुदेव पहले वीडियो में बता रहे थे कि शनि ग्रह 30 साल रहते. ये जैसे 12 राशियां हैं, 12 राशियां ऐसे सर्कल में है, तो शनि ग्रह होता है ना, वो 30 साल लेता है पूरे 12 राशि के चक्कर लगा. और सूर्य ग्रह कितना टाइम लेता है, कैन एनीबॉडी टेल? 1 ईयर. वेरी नाइस. सूर्य ग्रह को 1 साल लगता है और शनि ग्रह को 30 साल लगते हैं. तो 12 राशि में 30 साल लगते हैं, तो एक राशि में कितना टाइम लगा? 2.5 साल. 2.5 साल. तो 7.5 क्या होती है, जैसे विजय जी का रोहिणी नक्षत्र है, मतलब वृषभ राशि है. तो वृषभ से पहले आती है कौन सी राशि? मैंने राशि का नंबर भी दिखाया था एक स्लाइड में. मेष राशि. तो ये वृषभ राशि है. तो एक नंबर पे ये राशि का भी ऑर्डर होता है इस टाइप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो वृषभ से पहले आती है मेष राशि और वृषभ के बाद आती है जेमिनी राशि. तो जैसे ही शनि एरीज में एंटर करेगा, तो आप विजय जी की 7.5 शुरू हो जाएगी. और वो जेमिनी से एग्जिट करेगा जब 2.5 साल 7.5 साल बाद, तो 7.5 खत्म होगी. तो कोई बता सकता है अभी शनि कौन सी राशि में है? मकर राशि में. मकर राशि में. तो वेरी नाइस. तो विजय जी कौन कौन सी राशि की 7.5 चल रही है, आप बता सकते हैं अभी? 9 सेजिटेरियस की चलेगी और सेजिटेरियस और एक्वेरियस वालों की. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो एक आगे और एक पीछे की 7.5 चलती है. वेरी नाइस. सब समझ गए, सबको पहले से ही पता है बहुत सारी चीजें, तो समझ गया. तो अभी आप बता सकते हैं कि आपकी 7.5 कितने साल बाद आने वाली है? ये एक प्रश्न था, मकर राशि का कब खत्म होगा 7.5?
हाँ, तो मकर राशि का देखना पड़ेगा कि मकर राशि में शनि कब प्रवेश किया। ओके, तो मकर राशि में शनि आया अराउंड 2019 2020 स्टार्ट। तो मकर राशि का 7.5 अभी 2 साल और चलेगा, फिर उसके बाद एक्वेरियस से आएगा 7.5, 2.5 साल एक्वेरियस में रहेगा, फिर 2.5 साल पाइसेस में रहेगा। तो विजय जी का 7.5 कितने साल बाद शुरू होगा विजय जी? अबाउट 5 years मेरे ख्याल से। नहीं, अभी कैप्रिकॉर्न में इट्स लाइक 1.5 साल बचा है, फिर उसके बाद 5 साल 2.5 साल 2.5 साल पाइसेस, तो इट्स लाइक मोर देन 6 years। तो 2026 के बाद से टॉरस का 7.5 शुरू। मेरा एक मिनट, मेरा वृषभ राशि है विच इज टॉरस, इंग्लिश में टॉरस हुआ। तो एक वो चीज, अगर मैं अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कहूँ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो 5 जनवरी तो कैप्रिकॉर्न नहीं हुआ। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो 2 साइन होते हैं, सन साइन एंड मून साइन। सन एक राशि में 30 डेज के लिए रहता है। ओके, तो 12 राशियों को वो 12 महीने में कवर करता है, और मून एक राशि में 2.5 दिन के लिए रहता है। तो सन साइन इज लाइक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है, लेकिन आप खुद ही बताइए कि एक महीने के अंदर जो लोग पैदा हो रहे हैं वो सब लोग एक से हो ही नहीं सकते हैं। तो सन साइन ऑल्सो टेल्स लिटिल बिट अबाउट यू, लेकिन मून साइन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मून एक राशि में अराउंड 2.5 दिन रहता है। तो जो आपका टॉरस है दैट इज योर मून साइन, उस समय मून टॉरस में था एंड सन वाज इन कैप्रिकॉर्न। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सन साइन और मून साइन में डिफरेंस। लाइक आप जब पैदा हुए उस समय सन जिस जोडिएक साइन में था वो हो जाता है सन साइन, और मून जिस जोडिएक साइन में था वो हो जाता है मून साइन। गेटिंग इट विजय जी? हाँ, तो अपने जो फर्स्ट लेटर है, मतलब नाम का जो पहला लेटर है, उसके बेसिस पे ये अपना मून साइन है, एम आई करेक्ट? नहीं, वेरी नाइस, ये और इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो ये जो आपको नक्षत्र दिख रहा है ना, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र के 4 पदार्थ भी होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। तो एक राशि होती है 30 डिग्री की, एक राशि में अराउंड 2.5 नक्षत्र होते हैं। तो एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री और 20 मिनट का, और एक नक्षत्र में 4 पदार्थ होते हैं। तो एक पदार्थ होता है 3 डिग्री 20 मिनट के अराउंड का। तो हर पदा की ना, हर नक्षत्र के हर पदा की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी की कुछ साउंड होती है जो कि एक अल्फाबेट होता है। तो आपका जो नक्षत्र है उसका जो पदा है, उस पदा की जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो अल्फाबेट है वो आपका जन्म का नाम होता है। तो किसी का जन्म नाम पता करने के लिए आपको उसका नक्षत्र और उसका पदा, नक्षत्र का पदा आपने ज्यादातर देखा होगा, आप गूगल पे भी सर्च करोगे अपना नक्षत्र तो उसके आगे 1 2 3 या 4 नंबर दिखा मिलेगा आपको। तो दीज आर द स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो उसके बेसिस पे आपका नाम पता कर सकते हो, आपका जन्म नाम क्या है। तो इसी के कॉम्बिनेशन से 27 नक्षत्र जब 4 पदा में आते हैं तो 27 into 4 108। तो इस तरह से 108 इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमारी सारी माला 108 होती है, और 108 को इसलिए बहुत शुभ माना जाता है। तो 27 नक्षत्र और 4 पदों से रिलेटेड है, और उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियों में जब मूव करते हैं तो 108 इफेक्ट क्रिएट होता है। तो दोनों तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन बेसिकली 27 into 4 108 टोटल पदार्थ होते हैं। तो जब आप 108 बार चैंटिंग करते हो ना, तो हर नक्षत्र के हर पदार्थ को आप कंसीडर कर लेते हैं, तो वो पूरे नक्षत्र के पूरे पदा के लिए एक एक जप हो जाता है। तो दैट इज द रियल सिग्निफिकेंस 108। साहिल जी, एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए। कुछ लोग जो करंट प्रेडिक्शन करते हैं कुंडली से, वो करते हैं या तो लग्न से करते हैं, कुछ चंद्र राशि से करते हैं। तो होना किस हिसाब से चाहिए, मतलब क्या ज्यादा एक्यूरेट है, चंद्र राशि के हिसाब से या लग्न राशि के हिसाब से? तो आप मेरे से पूछेंगे तो ये दोनों ही इतने एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि लग्न और चंद्र राशि दोनों के अंदर ही एक और चीज आती है। वो क्या होता है बता सकते हैं आप? राशि के अंदर क्या आता है? पदा। अच्छा, पदा, नक्षत्र, 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 नक्षत्र। हाँ, यस। तो आपको लग्न का ना इन डेप्थ एनालिसिस के लिए लग्न का
नक्षत्र देखना पड़ेगा और जन्म राशि से भी आप थोड़ा सा मतलब अप्रोक्सीमेट ही बता सकते हैं। इन डेप्थ जानने के लिए ना आपको नक्षत्र देखना होगा, क्योंकि पता है आपको मैं विजय जी की राशि के बारे में बताऊंगा या कैंसर के बारे में बता देता हूँ। सपोज कर्क राशि, कर्क राशि में 3 बहुत ही बड़े बड़े नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। और ये तीनों एंटायरली डिफरेंट नक्षत्र है, बहुत ज्यादा अंतर है इन तीनों नक्षत्रों में। जैसे अश्लेषा बहुत ही डायनेमिक और राक्षस का होता है, बट दे आर वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। जैसे पुष्य इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल। तो इसलिए कर्क राशि के बेसिस पे आप प्रेडिक्शन करेंगे तो वो इन 3 नक्षत्रों के लिए गलत हो जाएगी, राइट, क्योंकि इन 3 नक्षत्रों में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए जन्म राशि जन्म नक्षत्र के बेसिस पे प्रेडिक्शन किया जाता है, लेकिन प्रेडिक्शन हमेशा 9 ग्रह को देख के किया जाता है। क्योंकि क्या रहता है कि किसी का जैसे बोला था मंगल नीच है, लेकिन क्या पता उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि वाला, अच्छा दृष्टि वाला शायद मैंने बताया नहीं। तो हर ग्रह जहां बैठा रहता है ना, उसके अलावा उसकी दृष्टि भी होती है बहुत सारे भाव। और गुरु और शनि ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि वो जहां बैठे उससे ज्यादा पावरफुल उनकी दृष्टि होती है। तो आपको गुरु और शनि ग्रह इन दोनों की दृष्टि कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी की कुंडली देखने हैं तो। इसलिए आई डोंट रिकमेंड एनीवन कि जो एकदम आपकी तुरंत कुंडली देख के आपको रीडिंग दे देता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर को आप अवॉइड करें, क्योंकि ही कैन डेफिनेटली मिस लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अ टाइम लाइक मैं भी प्रॉपर जब कुंडली देखता हूँ किसी की, एटलीस्ट 30 मिनट आई नीड टू एनालाइज, ओके कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है और कौन से ग्रह की इधर दृष्टि पड़ रही है, तो उस दृष्टि का असर कैसा होगा उस प्लेनेट पे। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। यू हैव टू यूज पेन पेपर और थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो आई रिकमेंड कि कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर पे जाए तो तुरंत कुंडली देखने से देयर आर हाई चांसेस ऑफ, आई एम नॉट सेइंग, कुछ लोग बहुत ही शार्प होते हैं तुरंत देख के भी बता देते हैं, लेकिन चांसेस ऑफ एरर आर वेरी हाई, क्योंकि इट्स अ टाइम। जैसे मैथ्स आप पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स में इक्वेशंस होती है, तो आपने 1-2 भी इक्वेशन मिस कर दी तो आपका जो आंसर जो आना चाहिए ना वो मैच नहीं करेगा। स्पेशली आर्ट ऑफ लिविंग के जो आपको वीडीएस के एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे या जो वीडीएस से सीखे हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स हैं, तो उनको हम जो ये साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसका भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है अपने चार्ट पे, राइट। इनफैक्ट बहुत ही पावरफुल इफेक्ट पड़ रहा है। तो दैट अगेन बिकम्स अ वेरिएबल, उसको भी उस इक्वेशन में ऐड करना होता है। तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स उस इक्वेशन में डालेंगे ना, जितने ज्यादा इफेक्ट्स डालेंगे, उतना आपका एक्यूरेट प्रेडिक्शन आता है। तो या दैट इज आई थिंक इनफ फॉर नाउ। और भी विजय जी कोई क्वेश्चन है तो वी कैन आस्क। एक क्वेश्चन है मेरे से कि ऐसा है कि कोई नक्षत्र ऐसा होता है, कोई नक्षत्र ऐसा होता है कि लेडीज के लिए वो अलग असर पड़ता है और जेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मूला नक्षत्र को लड़की को शादी करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, अगर वेरे आदमी बोले तो मैंने बताया ना, हाँ मैंने बताया ना कि एक चंद्रमा एक नक्षत्र में बैठा है, उससे आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। 9 ग्रह होते हैं और सबका इक्वल वेटेज होता है। चंद्रमा का थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि माइंड पे असर करता है, लेकिन आपको सारे 9 ग्रहों का वेटेज इक्वल असर देखना पड़ेगा, उसके बेसिस से ही आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो इट्स अ 9 वेरिएबल इक्वेशन। वैसे अश्लेषा नक्षत्र में भी अश्लेषा नक्षत्र को भी ऐसे ही बोलते हैं। और ज्येष्ठ नक्षत्र जिसको होता है उसको बोलते हैं कि एल्डरली बच्चे उनको ही शादी करवाना है, ऐसे बोलते हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र वो दूसरा को ऐसे। यस, आप थोड़ा सही जा रहे हैं। तो जैसे नाम से ही आपको दिखता है ज्येष्ठ मतलब होता है एल्डर, तो हर नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बहुत सारी। तो या गुरुदेव भैया मेरे को एक पूछना था। क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, कौन है पहले आप अपना नाम बता सकते हैं? हेलो, जय गुरुदेव। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रही हूँ, मीनल। यस, बोलिए। मुझे एक पूछना था, मकर राशि का राशि स्वामी शनि है। यस। हाँ, तो जिनको गुरु होते हैं उनको तकलीफ कम होती है ऐसा सुना है। तो अभी मेरी राशि तो मकर है। गुरु होते हैं तो
इसलिए देखो मैंने आपको सबसे पहले गुरुदेव का वीडियो सिखाया, मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है। गुरुदेव ने खुद बोला कि तकलीफ कम होना हमेशा आपके लिए आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। He got disconnected, वो भी दोबारा आ गए। मेरे क्वेश्चन पे डिस्कनेक्ट हो गए। I am back. तो गुरुजी चाहते थे कि वो आप गुरुदेव ने जो बोला है वो इतना याद करें इतनी देर में कि गुरुदेव ने क्या बोला, कि या तो चीजें आपके अच्छे की ही होती है या फिर अच्छे के लिए होती है। तो इट्स लाइक हाउ यू परसीव। मैं अनुभव कर रही हूँ। है बहुत ही क्लियरली बोला कि किसी का 7.5 चल रहा है, शनि का महादशा चल रहा है, तो आपका मटेरियल लाइफ में दिक्कत आएगा ही, क्योंकि उसका आपको दिखाना चाहता है कि आप अपने अंदर जो आपकी खजाना बैठा हुआ है ना उसको खोजें। तो आप बीटीपी करें जल्दी से, मैं बोलूंगा 7.5 जितना भी चल रहा है ना वो बीटीपी करे जल्दी से। आपने किया है क्या बीटीपी? हाँ, मैं टीचर हूँ। अरे वाह, तो बस तो आपको तो सब पता है, फिर तो बताने की जरूरत नहीं। तो आप बस कोर्सेज लेते रहिए, बढ़िया, सब आपका सही रहेगा। आप जितना सेवा करेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा। Yes. दिस इज आल्सो मैं वेरी अनुभव भी करती हूँ। वेरी नाइस। पहले मेरे को बहुत तकलीफ हुई इसके पहले जब 7.5 थी ना, लेकिन तो अभी ना आटो बहुत प्लेन सारे में आने के बाद एक प्रश्न आया है, 23 तारीख को राहु और केतु की महादशा चेंज हो रही है, सॉरी राहु और केतु की प्लैनेटरी मोशन, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या इफेक्ट लाएगा, व्हाट शुड वी डू, व्हाट वी शुड बी अवेयर अबाउट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इसके ऊपर ना ऑलरेडी वीडीएस में हमारे जो और साथ के एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा वीडियो 1-1.5 घंटे का बनाया है। तो मैं आप लोग ग्रुप में एडेड है, विजय जी मैंने आपको जो वो ग्रुप इनवाइट लिंक भेजा था ना वो एक बार आप डाल दो दोबारा से। करेक्ट, मैं दोबारा कर। और कोई नहीं है ना, या चैट बॉक्स में यू कैन पुट, और कोई नहीं है ना तो दे कैन ऐड, आई विल शेयर दैट वीडियो 1.5 घंटे का, उसमें पूरा एक डिटेल में बताया कि उसका क्या असर होगा। Okay, so tomorrow I'll share that video. Okay. अच्छा भैया एक प्रश्न था, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। भैया मेरा प्रश्न ये था कि मान लो कि 7.5 चल रही है, बट then also I need to take some big decisions in life materialistically, तो उसके लिए कुछ उपाय हो सकते हैं क्या कि वो एकदम सक्सेस हो जाए, ऐसा कुछ रहता है क्या? बिकॉज आपने बोला कि जब 7.5 होती है एक राशि में तो मटेरियलिस्टिकली उतना वो प्रोग्रेस नहीं होगा, बट देन ऑल्सो इफ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा एक सिचुएशन है कि आई नीड टू टेक दैट डिसीजन, तो ये कैसे ओवरकम हो सकता है? डेफिनेटली उपाय होते हैं, इसी के लिए इसी में सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का हेल्प होता है। तो मैं एक बार फिर से अपना नंबर डाल देता हूँ। अभिषेक जी आपका नंबर आई डोंट नो है मेरे पे कि नहीं, आप मेरे को अभी पिंग कर दो, मैं आपका नंबर सेव करके वी कैन yes. तो आपका 7.5 वालों का तो डेफिनेटली यू शुड पिंग मी, क्योंकि 7.5 के लिए एस्ट्रोलॉजी कैन वर्क रियली वंडर। आई कैन टेल यू, आईआईटी लोग बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स टू क्रैक। 10 लाख लोग बैठते हैं उसमें से 10,000 भी नहीं सिलेक्ट होते हैं। When I cleared IIT in 2010, only 6,000 seats were there, and I was under 7.5 की peak पे था, and I cleared IIT that year. So that means 7.5 can give you very very good results अगर आपका effort सही direction में हो तो। So it's just you have to like astrology का आपको knowledge है तो you can find out कि शनि के हिसाब से 7.5 के हिसाब से ये चीज करनी मेरे लिए ठीक है, मतलब मटेरियलिस्टिक एफर्ट्स को भी ना आप सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। जैसे कहाँ गए अभिषेक जी, दिख नहीं रहे, तो जैसे आप सतपा टॉप चैनल ही चला रहे हैं, तो इससे आपका अगर इंटेंशन है कि लोगों में और पॉजिटिविटी पहुंचे, उनका और ज्ञान बढ़े, तो दिस इज अ वेरी लाइक स्पिरिचुअल एफर्ट यू आर डूइंग मटेरियली, तो इसका आपको बहुत ही पॉजिटिव बेनिफिट भी मिल सकता है। तो इट्स अबाउट लाइक हाउ यू
पुट द इंटेंशन। आप कोई भी इंटेंशन को, जैसे आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा दिखूं, आई बिकम वेरी हैंडसम, लेकिन उसके साथ आप इंटेंशन डाल लेते कि क्योंकि मुझे अच्छा इसलिए दिखना है ताकि मैं बहुत अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन पाऊं, लोगों को इंस्पायर कर पाऊं और लोगों को इस मार्ग पे ले पाऊं, तो इट विल मैनिफेस्ट फास्टर, क्योंकि उससे आपने सोसाइटी का वेलफेयर जोड़ दिया। तो दैट इज अ बिग सीक्रेट, और 7.5 वालों के लिए इट वर्क्स वंडर। यू जस्ट गिव मी अ कॉल, आई कैन हेल्प यू डेफिनेटली विद दैट। तो Yes, राजेश जी ने लिंक भी डाल दिया है। Yes. तो विजय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक क्वेश्चन आया भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोरोना कब खत्म होगा? हाँ, इसने पूछा। हाँ, तो कोरोना प्रेडिक्शन तो हमने पहले ही डाल चुके हैं हम लोग। देयर वाज मेनी पीपल सेइंग कि सितंबर अक्टूबर में खत्म होगा, बट आई हैव टोल्ड, लाइक आप लोग थोड़े लेट जुड़े, बट आई हैव टोल्ड कि दिसंबर से पहले इट इज नॉट गोइंग टू गो इन इंडिया। तो अभी रिसेंट टीआरएम हुआ था, तो टीआरएम ने, गुरुदेव ने भी इसको क्लियर कर दिया कि आप लोग महाशिवरात्रि में यू कैन थिंक, अभी तो आप भूल जाओ आश्रम वगैरह का आना। तो दिसंबर से पहले आप लोग भी मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग करते, अगले साल भी इसका सर। यस, कौन है, बोलिए। हेलो भैया, सुधीर चक्रवर्ती मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था कि किसी का जन्म कुंडली नहीं है तो वो या तो दिन से देखते हैं जिस। हाँ, तो जन्म कुंडली नहीं है तो आप VDS की वेबसाइट पे जाइए एंड फाइंड योर टाइम बर्थ। तो आपका वो बैक कैलकुलेशन से आपकी लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को पूछेंगे और उसके बेसिस पे आपका वो एग्जैक्ट टाइम निकाल देंगे। इनफैक्ट मैं एक कहानी सुनाता हूँ बड़ी अच्छी, इट्स अ वेरी गुड गुरु स्टोरी। अविनाश टीकू को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अविनाश टीकू एक बहुत अच्छे टीचर है आर्ट ऑफ लिविंग के, मेरे फ्रेंड। Yes, we know. Yes, जानते भैया। हाँ हाँ, वेरी नाइस। तो अविनाश भैया एक बार ना यूएस जा रहे थे, उनका भाई यूएस में रहते हैं, तो उन्होंने बुलाया, गुरुदेव से बोले कि भैया यूएस में बुला रहे हैं कि मैं जाऊं क्या? बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, बहुत बड़ी स्टोरी है, जस्ट शॉर्ट में सुना रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बोला जाओ, 2 महीने के लिए जाओ। 2 महीने का वीजा था। और फिर गुरुदेव आए, आश्रम आए वहां पे गुरुदेव, तो अविनाश भैया गुरुदेव से मिलने गए। अविनाश भैया बोले कि गुरुदेव 2 महीने हो गए तो मैं जाऊं क्या? तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोशिश दो, इधर बहुत सेवा करनी है, कुछ करना है। तो उनको रोक दिया 2-3 महीने। फिर नवरात्रि आ गई, अविनाश भैया को बहुत टेम्पटेशन, गुरुदेव को कॉल किया, गुरुदेव मैं आ जाऊं क्या? तो बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ दिन और रुको। फिर एक बार तो एयरपोर्ट पे दोबारा गुरुदेव का ट्रिप, एयरपोर्ट को अविनाश भैया के साथ गए। फिर एयरपोर्ट से ही गुरुदेव ने बोला नहीं, तुम अभी कुछ देर और रुको यहाँ पे, बाद में तुम्हें मैं बुलाता हूँ। तो बड़े परेशान दुखी हो गए। फिर 1 साल बाद आए वो इंडिया। फिर एक बार ना गुरुदेव सब टीचरों से उनका नक्षत्र पूछ रहे थे, नक्षत्र राशि, उनको अविनाश भैया को पता ही नहीं अपना बर्थ टाइम। तो बड़ा एम्बेरस फील हुआ। गुरुदेव बोले कि यार तुम्हें अपना नक्षत्र नहीं पता, कैसे तुम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हो? तो अविनाश भैया अपने VDS के एक एस्ट्रोलॉजर पे गए, उनसे बैक कैलकुलेशन करके निकलवाया अपना नक्षत्र। फिर उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर ने खुद ही बता दिया कि पिछले साल आप यूएस गए थे, वेस्टर्न कंट्री गए थे और कुछ बहुत बड़ा काम किया था। तो वो बोले अविनाश भैया हाँ। तो बोले कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये जो साल था ना, आपके लिए बहुत ही खराब होने वाला था। अगर आप भारत में रहते तो आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते और बहुत ही बुरा हो सकता था कुछ भी। लेकिन क्योंकि आप विदेश में थे, अमेरिका में थे, तो ग्रह पूरे अपोजिट हो गए और वो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो गया। तो दैट इज हाउ गुरु एक्ट्स इन आवर लाइफ। वी कैन सी ऑल द चार्ट्स एंड यस, वी कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। तो वैसे भी लाइक गुरु है तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ है भी टेंशन तो मैंने अपना नंबर शेयर ही कर दिया, तो आप जस्ट मेरे को मैसेज कर दो, पिंग कर दो। बहुत लोग मांग रहे हैं तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ एंड आई विल सॉर्ट आउट। क्योंकि 7.5 वालों का थोड़ा कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं, आई नो, जो कि खुद नहीं निकाल पाते हैं। डेफिनेटली यू टेक माय हेल्प, टुमारो आई एम फ्री, तो कल बात करते हैं हम लोग। तो इट्स 10:21। तो लास्ट 2 क्वेश्चन विजय जी, लास्ट
भैया एक नाड़ी ज्योतिष होता है, वो क्या चीज होती है? और जो आप बता रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? एक नाड़ी ज्योतिष भी होता है। नाड़ी ज्योतिष पे भी एक और, हाँ, तो दैट इज काइंड ऑफ योर कुंडली ऑल्सो। आपके जो थंब इम्प्रिंट होते हैं ना, उसके बेसिस पे आपका तो अभी नेटवर्क भी बोल रहा है कि हमें ये मीटिंग खत्म करनी चाहिए। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Am I audible? Yes, yes. Yes. अच्छा, एक और छोटी सी सजेशन है, आप लोगों को अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, उन्होंने अपना नंबर, अच्छा आएगा भैया, आगे आप चैट बॉक्स पे भी लिख दीजिए, मैं चैट बॉक्स के क्वेश्चंस भैया को फॉरवर्ड कर दूंगा, देन ही कैन गेट बैक टू अस। भैया आप प्लीज गो अहेड। यस। तो आई थिंक टाइम अब भी हो ही गया है, तो बहुत लंबा भी नहीं रखते हैं। वैसे हमारे पास 44 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन लेट्स सी, विजय जी इट्स गोइंग वेरी वेल। तो मैं ऐसे ही आई थिंक हफ्ते में एक बार वी कैन सी, अगर अवेलेबल तो वी कैन चेक विद विजय जी, अभिषेक जी, उनका कैसा अवेलेबिलिटी है। वी कैन कंटिन्यू ऑन सम न्यू टॉपिक। अभी एक सेशन को ना बहुत लंबा नहीं खींचते, 1 घंटे ही रखते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं, तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ये इतना अच्छा लगा आपके साथ सेशन, एंड द वे यू एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स, काफी चीजें क्लियर हुई। एंड ऑब्वियसली जो आपने गुरु स्टोरी बताई, गुरु इज ऑलवेज देयर, जो कि बहुत टैक्टफुली हमें ये सारी चीजों से निकाल देते हैं। एंड अनदर वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच साहिल भैया फॉर कमिंग, इट वाज रियली वंडरफुल। तो सबसे मजे की बात, ये सेशन YouTube पे है, तो जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं वो उनको वैसे ही मिल जाएगा, बट प्लीज सब्सक्राइब करिए सो दैट यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन। एब्सोल्युटली, मैं तो खुद ये दोबारा देखूंगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेट की वजह से कुछ चीजें मिस हुई थी मेरी, तो आई विल वॉच इट अगेन। इवन इन फैक्ट भैया एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने उस दिन जो बताया था लास्ट टाइम वो चौघड़िया और राहु काल के बारे में, तो उसके अगले दिन मैंने ऐसे ही देखा, वो दृक पंचांग आप कह रहे थे ना, तो मैंने 2 दिन उसको फॉलो किया, तो आई रियली ऑब्जर्व कि वो जो आप कह रहे थे कि राहु काल में अगर आप बैठो साधना करने या जप करने तो बहुत इफेक्टिव रहता है, दैट वाज द केस, आई ऑब्जर्व्ड इट। द सेम वाज द केस जब लिखा हुआ था कि ये ऑस्पिशियस है, तो द थिंग्स हैपेंड मच बेटर, सो दैट इज द केस, जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। यस, इनफैक्ट मैं ये राहु काल वाली एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी तो ग्रह होने चाहिए, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी तो ग्रह ऐसे होने चाहिए। ग्रह होने चाहिए, लेकिन आपकी मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं। आई ऑलवेज बिलीव दैट। तो इफ यू विल प्रैक्टिस यू कैन लर्न एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो आपका इंटेंशन और आपका विल पावर। यस, तो रखते हैं हम लोग, नवरात्रि से पहले वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, तो मैं डालता हूं। भैया जय गुरुदेव, राजेंद्र बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ओके, बोलिए। भैया ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजर के ओपिनियन पे कितना % बिलीव करना चाहिए? कितना, मतलब उसने कुछ सॉल्यूशन दिया है तो उसके ऊपर कितना बिलीव करना चाहिए? तो आप आई थिंक पिछले वाले सेशन में नहीं थे। पिछले वाले सेशन में मैंने एक वीडियो चलाया था गुरुदेव का, तो उसमें गुरुदेव ने क्लैरिफाई किया था। नहीं, मैंने YouTube पे लाइव देखा था, उसका रिकॉर्डिंग देखा था मैंने, सेशन देखा था मैंने, लाइव नहीं था लेकिन रिकॉर्डिंग देखा था मैंने।
हाँ, तो ये ना एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड करता है कि वो डिवोटी है, वो कैसा है। इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द एस्ट्रोलॉजर। लेकिन गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू इफेक्ट द आउटर सिचुएशन। तो आप साधना सेवा सत्संग जो पाठ दिया है ना, इससे आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि आप बाहर के वातावरण को चेंज कर सकते हो अपनी प्रेजेंस से। तो ऑलवेज बिलीव इन दैट। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती है, कुछ कर्मास होते हैं पुराने, वो कटने होते हैं, तो ठीक है, वो आते जाते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बैलेंस बना के चलिए। मैं एक बार ये राहु काल जो विजय जी ने बोला था ना, एक बार और शेयर करता हूँ। राहु काल इज द बिगेस्ट टेक अवे यू कैन टेक, क्योंकि राहु काल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग राहु काल जरूर फॉलो करिए अपनी लाइफ में, और कोई भी इंपॉर्टेंट काल राहु काल में अवॉइड करिए और मेडिटेट करिए। तो मैं एक बार फिर से स्लाइड शेयर करता हूँ राहु काल वाली। ये हमारा फेसबुक पेज है, किसी को जाना है तो दे कैन जस्ट सर्च, अभी इसका नाम चेंज हो गया, प्रैक्टिकल ज्योतिष, तो दे कैन फाइंड आउट, एंड दिस इज आवर वेबसाइट आल्सो। तो यस, तो इस स्लाइड का आप जरूर फोटो ले लीजिए, और इसको बड़े अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट होता है, अभी मेरे पास नहीं, नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं याद दिलाता हूँ। लेकिन आप जो राहु काल के टाइमिंग है ना, मॉर्निंग 7 बजे से लेकर के इवनिंग 6 बजे के बीच होता है, 1.5 घंटा हर दिन। तो इसको आप जरूर याद करिए, और इससे आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन। आप अगर राहु काल को फॉलो करने लगेंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इंसाइट। राहु काल इज हैज लॉट ऑफ पावर। ऐसे ही अभिजीत मुहूर्त भी होता है, वो भी बहुत पावरफुल होता है। तो ये तो ओके, तो आई थिंक अविनाश भैया वाला गुरु स्टोरी, बहुत सारा गुरु स्टोरी और है, तो कभी एक और सेशन गुरु स्टोरी का ही रख लेंगे और मजा आएगा। यहाँ एक एक गुरु स्टोरी मैं सुनाते जाऊंगा हर सेशन में, तो इट विल बी ठीक है। विजय जी, अभिषेक जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल प्लीज। तो फिर हम मिलते हैं, लेट्स सी। ओके फिर, ओके भैया, ओके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। थैंक यू, जय गुरुदेव भैया। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। जिसको ज्योतिष में इंटरेस्ट ना हो, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है आपके पास, और आप बड़े पेशेंस से भी समझाते हो। हाँ, बहुत अच्छे टीचर करते हो आप बात को। मैंने तो आपसे